ریاست اتر پردیش کے جھانسی میڈیکل کالج میں ICU میں بھیانک آگ لگ جانے کے نتیجے میں کم از کم 10 بچے زندہ جل کر ہلاک ہو گئے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ ایک دل دہلا دینے والے واقعے میں رات تقریباً 10:30 بجے NICU میں آگ لگنے کے بعد کم از کم 10 نوزائیدہ بچے جھلس کر ہلاک ہو گئے۔ DM ایناش کمار نے بتایا کہ جھانسی میڈیکل کالج کے بچوں کے وارڈ میں بھیانک آگ لگی تھی، کھڑکیاں توڑ کر بچوں کو نکالنے کا کام کیا گیا۔ DM کے مطابق 10 بچوں کی موت ہو گئی ہے۔ چیف منسٹر اتر پردیش یوگی آدتیہ ناتھ نے اس حادثے پر گہرے رنج کا اظہار کیا ہے۔ وہ صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اندرون 12 گھنٹے اس واقعے کی رپورٹ طلب کی گئی ہے۔ آگ لگنے کی اطلاع ملتے ہی آتش فروز عملے نے موقع پر پہنچ کر آگ بجھانے کا کام کیا۔ جن ماں باپ کے بچے وارڈز میں زیر علاج تھے وہ زارو خطار روتے دیکھے گئے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے عوام سے کہا کہ وہ علماء کرام کی عزت کریں لیکن ووٹ مجلس کو ہی دیں۔ صدر مجلس بیرسٹر اویسی نے اورنگ آباد ایسٹ میں مجلسی امیدوار سید امتیاز جلیل کے لیے مہم چلاتے ہوئے ایک زبردست انتخابی جلسے سے خطاب کیا اور کہا کہ جب تک مسلم لیڈرشپ نہیں ہوگی مسائل حل نہیں ہوں گے۔ انہوں نے علماء کرام کے اورنگ آباد ایسٹ میں اپوزیشن کی تائید پر کہا کہ علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں، ان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن ان کی توہین نہیں کی جا سکتی۔ عوام علماء کرام کی عزت کریں لیکن ووٹ مجلس کو ہی دیں۔ نارسنگی میں سالگرہ کی تقریب میں ایک نوجوان کا قتل کر دیا گیا۔ پولیس نے 3 ٹیمیں تشکیل دے کر قاتل کی تلاش شروع کر دی۔ ذرائع نے بتایا کہ روہت نامی نوجوان جو کہ IDPL کا رہنے والا تھا اپنے دوست کی سالگرہ کی تقریب میں شرکت کے لیے الکا پوری کالونی گیا۔ بتایا گیا ہے کہ سالگرہ کی تقریب میں شراب نوشی کی گئی۔ دریاسنا روہت اور اس کے دوستوں میں جھگڑا ہوا اور اس دوران ایک نوجوان نے روہت کے سر پر شراب کی بوتل مار دی۔ روہت موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ بعد میں اس کے دوست وہاں سے فرار ہو گئے۔ پولیس نے اس واقعے کا علم ہونے پر موقع پر پہنچ کر نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال پہنچایا اور ایک مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کی۔ بتایا گیا ہے کہ پولیس نے 3 خصوصی ٹیمیں تشکیل دی ہے اور قاتل کی تلاش کا آغاز کیا ہے۔ شمشاباد کے راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بم کی دھمکی ملنے کے بعد مسافروں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ شمشاباد کے راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اس وقت کشیدگی پیدا ہو گئی جب حیدرآباد سے بینکاک جانے والی پرواز میں ایک مسافر نے بتایا کہ اس کے پاس بم ہے اور اس بات کے عام ہوتے ہی خوف و ہراس کا ماحول پھیل گیا۔ CISF کے اہلکاروں نے فوراً مسافر کو حراست میں لے کر اسے پوچھ تاچھ کی اور اس کے سامان کی بھی جانچ کی۔ حادثے کی روک تھام کے اقدامات کے علاوہ پرواز میں سوار 136 مسافروں کو بھی محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ اس طرح کے واقعات کی وجہ سے مسافروں میں بے چینی دیکھی جا رہی ہے۔ دریاسنا جہاز کے اندر موجود افراد کو عملے نے بحفاظت نیچے اتار دیا۔ عملے نے مسافرین سے کہا ہے کہ بم کی موجودگی کے شبے میں تلاشی مہم جاری ہے، لہٰذا انہیں خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رہے کہ پچھلے کئی دنوں سے طیاروں کو بم سے اڑانے کی دھمکیاں موصول ہو رہی ہیں۔ جمعہ کو ناگپور کی پرواز کو بھی اسی طرح کی دھمکی ملی تھی جس کے بعد حکام چوکس ہو گئے تھے۔ اس طرح کے واقعات ملک بھر میں ہوائی بازی کی حفاظت پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ مرکزی وزیر رام موہن نائیڈو نے کہا ہے کہ اس طرح کی حرکتوں اور دھمکیوں کو روکنے کے لیے قواعد میں تبدیلی ضروری ہے۔ رنگا ریڈی ضلع منی کنڈا میونسپلٹی کے پیپل گوڑا علاقے میں ایک رہائشی عمارت کے اپارٹمنٹ میں آگ لگ گئی جس کی وجہ سے خوف و ہراس پھیل گیا۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ پیپل گوڑا کے گولڈن اوریول اپارٹمنٹ کی 3ری منزل پر آگ لگ گئی اور رہائشی خوف و ہراس میں مبتلا ہو گئے۔ یہ واقعہ صبح 3:30 بجے کے قریب پیش آیا۔ آگ لگنے کی وجہ سے باورچی خانے میں رکھا سلنڈر بھی پھٹ گیا اور آگ مزید شدت اختیار کر گئی۔ فلیٹ میں رہنے والے افراد باہر نکلنے اور اپنی جان بچانے میں کامیاب رہے۔ اس واقعے میں فلیٹ مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گیا ہے۔ مقامی لوگوں نے فوراً آگ لگنے کی اطلاع آتش فروز عملے کو دی۔ 3 فائر ٹینڈرز موقع پر پہنچے اور
आग पर काबू पाने की कोशिश करने लगे। ताहम 1 घंटे तक जद्दोजहद करने के बावजूद भी वो आग बुझाने में नाकाम रहे, क्योंकि फायर इंजन के रिहायशी इमारत में दाखिल होने का कोई रास्ता ही नहीं था। मुकामी लोगों के मुताबिक इमारत की तामीर कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए की गई थी, इसलिए फायर इंजन इमारत में दाखिल नहीं हो सका। आतिशप्रो अमले ने काफ़ी जद्दोजहद और कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया। अपार्टमेंट में रखी गई रकम, कपड़े और कीमती सामान जलकर राख हो जाने की इतलात मिली हैं। आतिशबाजी की इतला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात का आगाज किया है। पुलिस को शुबा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी। राजेंद्र नगर हल्के के कांग्रेस कायदीन बीआरएस में शामिल हो गए। कारगुजार सदर केटीआर ने गुलाबी खंडवा पहनाकर उनका पार्टी में इस्तकबाल किया। जराये ने बताया है कि कांग्रेस कायदीन और कारकुनान 6 गारंटियों पर अमल दरामद न किए जाने और अवाम से किए गए वादों को पूरा न करने पर पार्टी क़यादत से नाराज हैं और उन्हें ये लगने लगा है कि कांग्रेस पार्टी मुश्किलात में घिरने वाली है। हफ्ते को राजेंद्र नगर हल्के के मनीकोंडा म्यूनिसिपैलिटी के कांग्रेस लीडर मलियादरी नायडू व दीगर ने बीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर ने तेलंगाना भवन में गुलाबी खंडवा पहनाकर उनका पार्टी में इस्तकबाल किया। एमएलए सबिता इंदर रेड्डी, बीआरएस रहनुमा कार्तिक रेड्डी वो दीगर इस मौके पर मौजूद थे। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन ने धूले के मजलिसी उम्मीदवार फारूक शाह अनवर की तायद में इंतखाबी मुहिम चलाई। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर नामपल्ली एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन ने पार्टी के कॉरपोरेटर्स के हमरा धूले के मजलिसी उम्मीदवार फारूक शाह अनवर की इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर पद यात्रा की और आवाम से पुरजोर अपील की कि वो 20 नवंबर को अपने घरों से निकले और धूले के मजलिसी उम्मीदवार फारूक शाह अनवर के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब करें। मुफ्ती सलमान अजहरी ने कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों सैयद इम्तियाज जलील, वारिस पठान और पार्टी कारकुनान को दुआओं से नवाजा और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जराये ने बताया है कि मुफ्ती सलमान अजहरी कुछ नामुसाइद हालात की वजह से रियासत महाराष्ट्र का दौरा नहीं कर पा रहे हैं। ताहम उन्होंने कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों सैयद इम्तियाज जलील और वारिस पठान के नाम और मजलिसी कारकुनान के नाम एक वीडियो पैगाम जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ ही दिन में रियासत महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात के लिए मुहिम खत्म हो जाएगी। औरंगाबाद और भिवंडी में उन्हें मजलिस की जानिब से इंतखाबी जल्से से खिताब करने के लिए मदऊ किया गया था। ताहम कुछ वजूहात की बिना पर वो महाराष्ट्र का दौरा नहीं कर सकते, लेकिन उनकी दुआएं औरंगाबाद के उम्मीदवार सैयद इम्तियाज जलील और भिवंडी के उम्मीदवार वारिस पठान के साथ हैं। उन्होंने कहा कि वो हर उस कायद के साथ हैं जो कौम व मिलत और मुल्क की फलाह व बहबूद के लिए खड़ा होता है और वो उनके लिए दुआ गो भी हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी ने तमाम उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए दुआएं भी की। केरला की त्रिशूर सिटी पुलिस ने मुंबई पुलिस अफसर का रूप धार कर धोखा देने की कोशिश को नाकाम बनाया और साइबर मुजरिम को अपनी हरकतों से बाज आने का मशवरा दिया। मुल्क भर में साइबर क्राइम में तेजी से इजाफा हो रहा है और साइबर मुजरिम नित नए तरीके अपना कर लोगों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे लाखों करोड़ रुपए वसूल किए जा रहे हैं। रियासत केरला के त्रिशूर सिटी से एक वाकया सामने आया है, जिसमें साइबर मुजरिम ने खुद को पुलिस अफसर बताकर साइबर पुलिस एहलकार को ही धोखा देने की कोशिश की। जब उसने आम शहरी समझकर वीडियो कॉल किया और अपने शिकार को धोखा देने और उसे डराने धमकाने की कोशिश की तो वो नाकाम हो गया, क्योंकि वीडियो कॉल पर कोई और नहीं बल्कि साइबर सिटी पुलिस का एहलकार था। अपने सामने पुलिस एहलकार को देखते ही खुद साख्ता पुलिस अफसर के होश उड़ गए और वो परेशान हो गया। दरियासना मौके का फायदा उठाते हुए त्रिशूर सिटी पुलिस के एहलकार ने साइबर मुजरिम को मशवरा दिया कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए, क्योंकि पुलिस ने उसका पता लगा लिया है, उसके पास तमाम तफसीलात मौजूद है। त्रिशूर सिटी पुलिस का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर
गर्दिश कर रहा है और सिटी पुलिस के इस इक़दाम की भरपूर सिताइश की जा रही है। लोगों को साइबर क्रिमिनल से होशियार रहने का मशवरा दिया जा रहा है। MRPS के रियासती क़ायद आनंद मादिगा ने कहा कि हुकूमत विकाराबाद जिले के कोडंगल हल्के में बगैर किसी मुआवजे के अराजी ज़बरदस्ती छीनने की कोशिश कर रही है। कोडंगल हल्के में अराजी हुसूल का काम कानूनी शोबे के हवाले किए जाने का इंकशाफ करते हुए MRPS रहनुमा आनंद मादिगा ने कहा कि पिछली हुकूमत ने अवामी मफाद के लिए अराजी हासिल की थी और मुआवजा भी अदा किया था, लेकिन मौजूदा हुकूमत बगैर किसी ऐलानात और मुआवजे के अराजी ज़बरदस्ती छीनने की कोशिश कर रही है और वज़ीर आला अपने भाई की खातिर ये सब कर रहे हैं। उनका कहना है कि इंदिरा गांधी के दौर में गरीबी हटाओ के नारे से दी गई अराजी पर दोबारा दावा किया जा रहा है। MRPS कायद का कहना है कि पुलिस का मासूम किसानों को दहशतज़दा करना और उनके खिलाफ थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं है। आनंद मादिगा ने गिरफ्तार किए गए बेकसूर किसानों को फौरन रिहा करने का मुतालबा किया है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत में जारी कास्ट सर्वे की सूरत हाल का जायजा लिया। ज़राए ने बताया है कि तेलंगाना में 51,24,000 घरों का अहाता करते हुए कास्ट सर्वे का 44.1% अमल मुकम्मल किया जा चुका है। फहरिस्त साजी के इब्तदाई मरहले के दौरान 1,16,14,349 मकानात को निशानजद किया गया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपनी रिहाइशगाह पर कास्ट सर्वे की सूरत हाल का जायजा लिया। बताया गया है कि 87,807 एहलकार और 8,788 सुपरवाइजर इस अमल में मसरूफ़ हैं, जो कि 92,901 ब्लॉक्स पर मुहित हैं, जिसमें 52,493 देही और 40,901 शहरी ब्लॉक्स शामिल हैं। कास्ट सर्वे पर सवालात उठाए जाने के बावजूद, लोगों की जानिब से एतराज़ात किए जाने के बावजूद और सड़कों पर दरख्वास्त फॉर्म्स मिलने के बावजूद रियासत भर में कास्ट सर्वे जारी है। तेलंगाना हुकूमत ने महकमा अक़लियती बहबूद की स्कीमात के लिए 294 करोड़ रुपए का बजट जारी किया। ज़राए ने बताया कि रियासती हुकूमत ने महकमा अक़लियती बहबूद के लिए मालियाती साल 2024-25 बजट के तीसरे तिमाही के तहत 294 करोड़ 61,69,000 रुपए का बजट मंजूर किया। स्पेशल सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद तफसीर इकबाल ने जियो जारी किया है, जिसमें मुख्तलिफ स्कीमात के लिए बजट की मंजूरी की तफसीलात भी शामिल की गई हैं। अक़लियतों की तालीमी और माशी तरक्की से मुताल्लिक़ स्कीमात के लिए हुकूमत ने ज़ायद बजट मख्तस किया है। अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन के तहत ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम के लिए 7 करोड़ 50 लाख रुपये मख्तस किए गए हैं और बैंकों से मरबूत सब्सिडी स्कीम के लिए अब तक 150 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं। अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन को फलाह स्कीमात पर अमल आवारी के लिए 37 करोड़ 50 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है। अक़लियती तलबा के स्कॉलरशिप की अदायगी के लिए 30 करोड़ मख्तस किए गए हैं। तीसरे एम्ब्रासमेंट के लिए बजट में 300 करोड़ रुपये मख्तस किए गए और तीसरे तिमाही के तहत 75 करोड़ रुपये मख्तस किए गए हैं। तेलंगाना उर्दू एकेडमी को उर्दू घर शादी खाना स्कीम के लिए 3 करोड़ रुपये मख्तस किए गए। माइनॉरिटी स्टडी सर्कल के लिए 1 करोड़ रुपये मख्तस किए गए हैं। चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम के लिए तीसरे तिमाही के तहत 32 करोड़ 50 लाख रुपये मख्तस किए गए हैं। दायरतुल मुआरिफ उस्मानिया के लिए 75 लाख रुपये मख्तस किए गए हैं और उर्दू एकेडमी को ग्रांट इन एड के तहत 92 लाख रुपये मख्तस किए गए हैं। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के तहत आइमा और मौज़नीन के एजाज़िया के लिए 30 करोड़ रुपये मख्तस किए गए। एजाज़िया की स्कीम के लिए मजमूई बजट 120 करोड़ रुपये है, जिसमें से 60 करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं। मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद की निगहदाश्त और मरम्मत के कामों के लिए 82 लाख रुपये मख्तस किए गए हैं।